Okay. Yes, good afternoon, student. I hope you are fit and fine at your home during this lockdown period. So now start our Zoom class. Subject physical education, class 11th. Topic is unit is 4 and topic is adaptive physical education. Okay. Unit is 4 physical education sports for CWSN. Full form of CWSN, children with special needs. It means Divyang. Those who are person physical handicapped. We call Divyang them. उन लोगों को हम दिव्यांग कहते हैं जो फिजिकली हैंडीकैप्ड होते हैं. ठीक है. दिस चैप्टर रिलेटेड दोज पर्सन्स. Okay. And today first topic is adaptive physical education. First of all, we know what is adaptive. Okay, meaning of adaptive. So that meaning of adaptive, having an ability to change to suit different condition. It means changing quickly to suit different conditions. Another way is able to adjust to the conditions of a particular environment. It means we can say that adaptive means anukul. It means adjust. Those who person adjust environment or society and these physical handicap problems. This chapter related to those persons. Okay. Adaptive physical education is a modified program of games, sports, and other development activities that is suited to the interest, capacities, and limitations of students and individuals with special needs. It is created for a student with special need so they can also enjoy experience of sports and recreation. Every school has students who are differently abled, require special service to be able to realize their maximum potential. It means adaptive physical education modified program गेम्स एंड स्पोर्ट्स के लिए एडेप्टिव फिजिकल प्रोग्राम ऐसा मॉडिफाई किया जाता है जो कि उनके इंटरेस्ट के ऊपर होता है. जो फिजिकल हैंडीकैप्ड लोग होते हैं उनके इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग इस प्रोग्राम को सेट किया जाता है. ठीक है. एंड कैपेसिटी एंड लिमिटेशंस, और उनकी कैपेसिटी और लिमिटेशंस को देखते हुए इस प्रोग्राम को उनकी लिमिटेशंस के अकॉर्डिंग उनके स्पोर्ट्स फिक्स किए जाते हैं. उनकी जो स्पेशल नीड्स है उनको कंप्लीट किया जाता है. एंड और वो मैक्सिमम ज़्यादा से ज़्यादा रिक्रिएशन कर सके, एक्टिविटी पार्टिसिपेशन कर सके, इंजॉय कर सके, उसके लिए ऐसी प्रोग्राम शेड्यूल तैयार किए जाते हैं उनकी प्रॉब्लम को देखते हुए. ठीक है. इसके अलावा बहुत सारे स्कूल्स, एवरी स्कूल स्टूडेंट, बहुत सारे स्कूल्स ऐसे जो ऐसे प्रोग्राम डिसाइड करते हैं, ऐसे प्रोग्राम तैयार करते हैं. ठीक है. हमारे चिड़ावा में एक ऐसे एक ऑर्गेनाइजेशन है अक्षय प्रतिष्ठान, जिसका आपने नाम सुना होगा, अक्षय प्रतिष्ठान, जिसका हेड ऑफिस दिल्ली में चिड़ावा में भी है. ठीक है. वो भी फिजिकल हैंडीकैप्ड लोगों के लिए काफ़ी प्रोग्राम्स फिक्स करती है. उनकी कैपेबिलिटी, उनकी कैपेसिटी को देखते उनके लिए प्रोग्राम ऑर्गेनाइज करवाती है. ठीक है. ओके. Now, different names what suggest are for adaptive physical education for differently abled children. Some of the common names are corrective physical education, remedial physical education, physician therapy, corrective therapy, development physical education, and individual physical education. In 1947, American Association for Health, Physical Education and Recreation
conducted a survey to determine the most acceptable term for the identification of sports and physical education for differently abled children. Consequently, the term adaptive physical education was most acceptable. Since then, this term become popular. Which term? Adapted या फिर adaptation या फिर adaptive, this term. Now, adapted physical education is a sub-discipline of physical education. It is an individual program development for students who require a specially designed program of physical education. The program of adaptive physical education involve physical fitness, motor fitness, fundamental motor skills, and partners, equity skills, dance skills, individual and group games and sports. Okay. Next point is concept of adaptive physical education. What is the concept of adaptive physical education? There are many children who have suffer from various types of disabilities like mental reductions, deficiencies, blindness, speech impairments, etc. For such children, and special program may be organized so that physical, musical, cognitive, social, and emotional abilities can be developed in them. It means main concept of adaptive physical education. Those who have facing physical handicap problems, these situations. So we are organize a program and their maximum participation for them. ओके हमें ऐसे प्रोग्राम तैयार करने चाहिए जिनसे उन जो हैंडीकैप लोग हैं उनके लिए ज्यादा पार्टिसिपेशन के चांसेस बने. प्रोग्राम को इतना इजी बनाना चाहिए कि उनके चांसेस वो पार्टिसिपेट कर सकें और अपने जो वो ना कर सके अपने पोटेंशियल जो शो नहीं कर पाते बिकॉज दे आर फिजिकल हैंडीकैप. ठीक है, नॉर्मल लोगों की तरह अपने पोटेंशियल शो नहीं कर पाते तो वो अपने ऐसे प्रोग्राम तैयार करेंगे जिनसे वो अपने पोटेंशियल शो कर पाएंगे और अपने परफॉर्मेंस आगे बढ़ा पाएंगे. ठीक है, ये मेन कंसेप्ट है अडेप्टिव फिजिकल एजुकेशन का. नाउ टर्न इज ऑब्जेक्टिव एंड प्रिंसिपल्स ऑफ अडेप्टिव फिजिकल एजुकेशन. ओके, फर्स्ट पॉइंट इज मेडिकल चेकअप. ओके, medical checkup is the success of adaptive physical education programs largely depends on the medical checkup of the students. Without medical examination, no one can come to know the type of disability the student is facing. So a complete medical examination should be done. It means we don't know, अगर हम मेडिकल चेकअप नहीं करेंगे किसी फिजिकल डिसेबल्ड लोगों का तो हमें नहीं पता लग पाएगा कि वो कौन सी एक्टिविटी में किस एक्टिविटी में वो मैक्सिमम अफोर्ड कर सकते हैं, मैक्सिमम अप्रोच कर सकते हैं. तो इसलिए हमें मेडिकल चेकअप करना बहुत जरूरी है कि जिससे हमें पता लगेगा कि वो किस टाइप की फिजिकल एक्टिविटी में पार्टिसिपेट कर सकते हैं. ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट इज the programs must be based on interests of students. This is the more important thing because those अगर हमें उनका इंटरेस्ट का ही नहीं पता होगा या हमें ये नहीं पता होगा वो किस गेम में कैपेसिटी रखते हैं उनके अकॉर्डिंग टू उनके इंटरेस्ट. जो फिजिकल डिसेबल्ड है ऐसे प्लेयरों के इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग हमें जो प्रोग्राम है वो तैयार करने चाहिए जिससे उनके मैक्सिमम पार्टिसिपेशन हो सके उनका और उनके मैक्सिमम परफॉर्मेंस शो हो सके. ठीक है, नहीं देखिए द प्रोग्राम्स ऑफ adapted physical education must be based on the interest, attitudes, abilities, previous experience and limitations of students. So the teachers should have a in-depth knowledge about limitations, interests and attitude of disabled persons.
only then they may be able to implement the program. They must be well aware about the needs of the students. ओके, इट मीन्स हमें उनके इंटरेस्ट का भी विशेष ध्यान रखना चाहिए, वो किस गेम में किस एक्टिविटी में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट रखते हैं, किस उनके इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग जो भी हमें प्रोग्राम शेड्यूल कर रहे हैं वो उनके अकॉर्डिंग होना चाहिए, उनके इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग होना चाहिए, जिससे उनका पार्टिसिपेशन मैक्सिमम हो सके. ओके, नेक्स्ट थर्ड ऑब्जेक्टिव इज इक्विपमेंट शुड बी अकॉर्डिंग टू द नीड्स. The equipments or objectives should be designed according to the needs of the students. They should vary in size, shape, color, and weight. They should be according to the level of a student. A students with a visual impairment should use a brightly colored ball for starting. It means we can say that जो भी हम प्रोग्राम शेड्यूल कर रहे हैं, जो भी हम एक्टिविटी कंडक्ट करवाने वाले हैं हैंडीकैप लोगों के लिए, हमें उनके जो इक्विपमेंट है वो उनके अकॉर्डिंग लेने चाहिए, उनकी जरूरत के अकॉर्डिंग लेने चाहिए, जैसे उनको जरूरत है. अगर कोई पैर से विकलांग है, लेग से विकलांग है, तो हमें उसके लिए चेयर लेने बहुत जरूरी है, अदरवाइज वो पार्टिसिपेट नहीं कर पाएगा. कि अगर किसी कोई हैंड से विकलांग है तो उनके लिए हमें जो दूसरे हैंड आते हैं, आर्टिफिशियल हैंड्स आते हैं, उनके यूज करना चाहिए. तो इस तरह से हमें उनके इक्विपमेंट यूज करने चाहिए उनके अकॉर्डिंग टू उनके नीड्स के. ठीक है, जो उनकी नीड्स है उसके अकॉर्डिंग इक्विपमेंट यूज करेंगे, जिससे उनकी परफॉर्मेंस और पार्टिसिपेशन दोनों में इंक्रीजेज होंगे, दोनों इंक्रीजेज होंगे, पार्टिसिपेशन बढ़ेगा और उनके परफॉर्मेंस भी इंक्रीज होगी. नेक्स्ट पॉइंट इज फोर्थ पॉइंट, स्पेसिफिक एनवायरनमेंट शुड बी प्रोवाइडेड. According to situation, we are provided a specific environment for according to situation. जैसे situation उसके अकॉर्डिंग हमें उनको environment provide करवाना चाहिए, जिससे उनका participation increase हो. ठीक है, the play area should be limited as movement capability, so such students are limited. Especially students who have enthusiasm must be provided a specific play area because they may need some time to relax. Light and sound are also vital for making considerable environment for such students. It means यदि if environment अगर अच्छा नहीं होगा तो जो उनका पार्टिसिपेशन है वो कम हो जाएगा डिसेबल्ड लोगों का. ठीक है, और उनके अकॉर्डिंग जो वो चाह रहे हैं उनके अकॉर्डिंग उनकी परफॉर्मेंस भी नहीं आ पाएगी, हमें उनके पोटेंशियल का पता नहीं चल पाएगा, उनकी परफॉर्मेंस इंक्रीज हुई है नहीं उसका भी नहीं पता लग जाएगा. इट मीन्स हमें जो भी प्रोग्राम शेड्यूल करें वो उनके एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग तैयार करना चाहिए. ठीक है, और बेस्ट से बेस्ट एनवायरनमेंट उनको देने की कोशिश करनी चाहिए. नेक्स्ट पॉइंट इज टीचिंग स्ट्रेटेजीज बेस्ड ऑन स्टूडेंट्स लेवल्स. जो भी स्ट्रेटेजी हमें तैयार करनी है वो उनके हमें स्टूडेंट्स के लेवल्स के अकॉर्डिंग तैयार करनी चाहिए. जो उनका लेवल्स है, स्टैंडर्ड है, उसके लेवल अकॉर्डिंग हमें स्ट्रेटेजी तैयार करनी चाहिए, जिससे उनकी परफॉर्मेंस में उनकी लर्निंग कैपेसिटी बढ़ेगी, उनकी परफॉर्मेंस इंक्रीज होगी. ठीक है, देखिए, टू परमिट द substitution or interchanges of games, a variety of different instructional strategies such as verbal, visual, and peer touching should be used. It can give to students the opportunity to start learning on their own and to become more independent. It means हमें जो भी स्ट्रेटेजी हम तैयार कर रहे हैं वो क्या होनी चाहिए, उनकी स्टूडेंट के लेवल को देखते हैं. इट मीन्स अगर कोई जिसको कलर विजुअल ना पता हो, ठीक है, जो ब्लाइंड हो, मतलब जो अंधा है, ठीक है, तो हमें जो स्ट्रेटेजी तैयार कर रहे हैं वो उसकी जो उसकी ब्लाइंडनेस के अकॉर्डिंग तैयार करनी चाहिए. ठीक है, कि भाई इसको ये अगर हम कलर नहीं पहचान पाएगा लेकिन इस टारगेट से, ठीक है, हम कोई डिसाइड करते हैं इस तरह से ये ग्रीन कलर को पहचान लेगा, हम उनको साइन लैंग्वेज उनको समझाएंगे, इस कलर का ये
जो डिजाइन होगा ये इस कलर का होगा, तो उस डिजाइन पे जैसे फिंगर टच करेगा उसे आइडिया हो जाएगा भाई ये इस डिजाइन का है, जिससे वो पहचान कर पाएगा। इट मींस हमें स्ट्रेटेजी बनानी चाहिए उनके लेवल्स को देखते हुए कि लेवल का है। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है रूल्स एंड रेगुलेशन शुड बी इजी। रूल्स एंड रेगुलेशन शुड बी इजी। हमें क्या करना चाहिए, रूल्स और रेगुलेशन जो हम तैयार कर रहे हैं प्रोग्राम के लिए या जो हमने शेड्यूल तैयार किया उसके लिए हम जो रूल्स और रेगुलेशन डिसाइड किए उनको हमें इजी बनाना चाहिए, कॉम्प्लिकेट नहीं करना चाहिए, उनको फ्लेक्सिबल बनाना चाहिए। ठीक है। देखिए in the beginning rules of the activity should be the simple, but later on these can be modified according to needs of the students. First of all, we are started the simple rules and regulation. After that, we are जब हम देखेंगे कि स्टूडेंट की परफॉर्मेंस डेवलप हो रही है, इंक्रीज हो रही है, तो हमें उन रूल्स को मॉडिफाई कर देना चाहिए, करते रहना चाहिए, जिससे कि उनकी जो परफॉर्मेंस है वो और भी बेटर हो सके। ठीक है। Modification in the rules can be very beneficial for such students. They can be provide extra attempts at a skills where general students have only limited number of attempts. Extra points can be given to such students. Besides, rules regarding times can be modified. They can be provided extra time or additional rest. It means हमें rules and regulation में मॉडिफिकेशन करना चाहिए, उन्हें एक्स्ट्रा टाइम देना चाहिए, जो रिकवरी टाइम होता है उस रिकवरी टाइम को इंक्रीज करना चाहिए, उन्हें रेस्ट मैक्सिमम रेस्ट देना चाहिए। ठीक है। इस तरह से भी हम उनके परफॉर्मेंस को इंक्रीज कर सकते हैं, उनके पार्टिसिपेशन को बढ़ा सकते हैं। एंड लास्ट पॉइंट इज स्टूडेंट्स प्रीवियस एक्सपीरियंस मस्ट बी टेकन इनटू कंसीडरेशन। previous experience. The teachers must have a comprehensive understanding the knowledge of the students' previous experience is physical education. It means हमें क्या करना चाहिए, जो उनका पिछला अनुभव है, if that it means जो लोग पहले से पार्टिसिपेशन किए हुए हैं किसी एक्टिविटी या प्रोग्राम में, उनको हमें उनको और नेक्स्ट स्टेप उनको करवाना चाहिए, उनका एक्सपीरियंस को ध्यान में रखते हुए उनको स्टार्टिंग से बिगनिंग से ना स्टार्ट करके हमको एडवांस एक्सरसाइज या एडवांस एक्टिविटी उनको करवाई सकती है, जिससे उनकी परफॉर्मेंस में इंक्रीज हो और जो उनके एक्टिविटीज में पार्टिसिपेशन में जो इंटरेस्ट हो उसमें भी बढ़ोतरी हो। ठीक है। उनका इंटरेस्ट, पार्टिसिपेशन का जो इंटरेस्ट है वो भी बढ़े, उनको पार्टिसिपेशन में मजा आए, खेलने में इंजॉय करें वो। ठीक है। And next is okay. Next is thank you. So I hope this topic is very small and very interesting. Okay, any doubt बेटा? किसी को डाउट हो प्लीज चैट बॉक्स में आए या फिर वैसे भी पूछ सकते हैं, कोई नो प्रॉब्लम।